Hello, everyone. Welcome. Thank you for joining. If you can hear me, if you can see me, please tell me from where you're joining. Mumbai, Odisha. Yes, you can hear me this. Okay. Thank you. Let me just share my screen. Okay. So you can share, you can see my presentation, right? Please tell me in the chat box, Junjunu. Okay. Everyone is welcome. So, as you know, we are here to work on our relief after heartbreak. So, tell me just last question. I want to know before we begin, is everyone comfortable with a little bit of Hindi, or do you want me to keep it proper English? Because I know the ads were in English. Okay, so it's okay if I add in a little bit of Hindi, right? Okay. Okay, so as we know, here we are here to work on our heartbreak, right? We are working on relief after heartbreak. हम यहाँ पर heartbreak के pain को process करने के लिए आए हैं, and we'll be working on it through EFT. Okay, EFT is a leading healing modality about which I'll tell you later. तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ. आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट. आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन लाइफ बिटवीन लाइफ थेरेपिस्ट. ठीक है. मैंने फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी भी करी हुई है एंड आई एम ऑल्सो एन ईएफटी मास्टर कोच. मैं रिलेशनशिप एंड इंटीमेसी कोचिंग भी करती हूँ एंड आई एम सर्टिफाइड इन पॉजिटिव साइकियाट्री एंड मेंटल हेल्थ. So I worked with 100 plus clients on one-on-one and group coaching. And why I am in this field is, it's an obvious question. आप लोग सोचते होगे why this work is because मैं खुद बहुत ज़्यादा relationship struggle से निकली हूँ. And I have really worked on myself, tried to figure out what works, what does not work. And that is why I'm here to share what is working, what is not working. Okay, and the benefits of being in this space are that आप you will start feeling emotional safety from within. अंदर से emotionally safe feel करना शुरू करेंगे, self worth feel करना शुरू करेंगे, as in अंदर से you will be okay where you are. ठीक है. अगर रिलेशनशिप पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, यहां से ब्रेक होने भी शुरू होंगे. क्लैरिटी, यू विल फाइंड क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन. कंफ्यूजन जो भी थे लाइफ में, यू विल सी दैट एज यू वर्क ऑन योर सेल्फ, एज यू improve your energy, you will start seeing clarity also. Then हम बहुत ज्यादा अपने आप को ही अबैंडन कर देते हैं, स्पेशली आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, राइट? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है. तो यू विल कम टू दैट प्लेस वेर यू विल बी स्टार्ट being okay with who you are, being with yourself. So that will lead to a calm and conscious way of living. ठीक है. If everyone is with me, please type WU in the chat box. Is everyone with me? Okay, thank you. तो यहाँ पर आप हैं, आपको मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी इफ यू स्टे टिल द एंड. सो आई वांट यू टू स्टे टिल द एंड. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक नोट्स. अगर आपके पास नोट पैड है, बहुत अच्छा है. इफ यू डोंट हैव, देन आई विल गिव यू 5 to 10 seconds जा करके लेकर के आइए. And keep taking notes. Whatever you find is will be useful for you, or something that strikes you that you did not know, keep noting. Because आप जब नोट लोगे तो आपके यहाँ पर रहेगा, राइट? अदरवाइज आप रिटेन नहीं करोगे एंड देन यू वोंट बी एबल टू वर्क लेटर, राइट? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज कीप देम नोटेड. वील बी आंसरिंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन द एंड. ओके हिमांशु, अगर आप कार से अटेंड कर रहे हो, देन आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू अटेंड इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ हीलिंग वर्क. अगर आप जल्दी से घर पे आ सकते हो, इट वुड बी बेटर, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू परस्यू हीलिंग एंड वो आप कार में कर नहीं पाओगे. ओके, यू आर नॉट ड्राइविंग. सो लेट्स सी. Basically I want a distraction free space, so I hope that everyone is in a distraction free place. Okay. So, first of all, before I begin, I want a promise from everyone कि यहाँ पर जो भी learnings होंगी, आप उसे आगे भी implement करोगे. Today, I'll give you tools that you will
learn so that you can work through this pain. You will feel better, but you will also have to continue working on it. And I want you all that whatever you take today, you will also implement later. So if you are with me, please type promise in the chat box. Promise. Thank you. And I want to thank you. I want to appreciate all of you. And I want all of you to appreciate yourself that you took the courage to come here. आपने इतनी हिम्मत दिखाई that you could come here. You know, सबसे बड़ी courage की बात होती है to be aware that we are suffering and to start working on it. So I want that all of us clap for ourselves that we have taken this step. This is the first step towards our healing, and यहाँ से चीजें better ही होंगी. Okay? नाउ अगर आप इस स्पेस में हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट माई 3 वैल्यूज आर, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अबाइड बाई इट. आई होप आप कर पाओगे. सबसे पहले तो कंपैशन. ठीक है, देखो क्या है, वी ऑल आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक, राइट? हम लोग हार्ट ब्रेक के पेन से जा रहे हैं. वी आर ऑन डिफरेंट जर्नीज. किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा. Someone might be hurt a lot by their partner, someone might have decided themselves. तो सब अलग अलग places में होंगे according to their journey. ठीक है, and according to that everyone will have their own reactions, according to that everyone will have their own symptoms. So what I want is that this place is a judgment free place. Here we will not judge anyone. Here we will just support each other on our journey. यहाँ पे हमारा इंटेंशन है दैट वी वर्क टुवर्ड्स आर हीलिंग, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दैट इंटेंशन दैट वी ऑल्सो हेल्प अदर्स, वी ऑल्सो सपोर्ट अदर्स, राइट? सो नो जजमेंट, जस्ट सपोर्ट, just safety and support. That is what we provide to each other. That is what we give to ourselves. Okay, and second is integrity. Integrity as in I want you to be first honest to yourself. Okay, आप जब खुद से honest होगे तो आप मेरे से भी ऑनेस्ट होगे, राइट? देन यू विल बी एबल टू टेल मी पेन कहाँ है, क्या फील हो रहा है, क्या इमोशन आ रहा है, कौन सी बॉडी पार्ट में है, एवरीथिंग. सो आई वॉन्ट दैट वैल्यू, that you have that in whenever in this space. Okay, and second, thirdly is accountability. Take responsibility for your healing, because I know when we go through heartbreak, we go through breakup, तो बहुत बहुत बार ये होता है, we start blaming our partner कि भाई उनकी ये गलती थी, इनकी ये गलती थी, उन्होंने ये कर दिया. पर क्या हो रहा है, ठीक है, चलिए आपको उनकी गलती दिख रही है, चाहे सब लोग कह रहे हैं उनकी गलती है, बट इफ दिस एक्सपीरियंस हैज हैपेंड टू यू, देन देयर इज समथिंग अबाउट यू, समथिंग इन योर एनर्जी दैट हैज इनेबल्ड इट टू हैपन. सो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू वर्क ऑन योर एनर्जी सो दैट अब ये आगे एक्सपीरियंस नहीं हो, सो दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, राइट? एवरी एक्सपीरियंस इज हियर टू मेक अस लर्न समथिंग. तो उसके लिए क्या चाहिए? लर्निंग के लिए वी नीड अकाउंटेबिलिटी, वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवरसेल्व्स, एंड दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू. So if you are with me here, type WU, with you. Thank you. Okay. Now इस स्पेस के कुछ रूल्स हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हीलिंग सबकी अपने पेस पे होती है, अकॉर्डिंग टू व्हाट प्लेस वी आर इन, अकॉर्डिंग टू हाउ मच एक्सेप्टिंग आवर बॉडी इज ऑफ चेंज ऑफ हीलिंग, एंड हमारा एनवायरनमेंट कितना कंड्यूसिव है टू हीलिंग, राइट? तो यहाँ पर हम रश नहीं करेंगे, हम अपने आप को जज नहीं करेंगे कि भाई आई एम नॉट हीलिंग फास्ट इनफ, आई एम नॉट फीलिंग, I should have felt this way by now. No, no, no judging yourself and no rushing your healing. Just believe in yourself that things are working and you will get there. You are here to feel supported, okay? Just remember that you are here to feel here to feel supported, ठीक है? And then remember, this is a gentle space to release your emotional pain, ठीक है? यहाँ का जो आपका पेन हो रहा है, जो इमोशंस स्टक हैं, बॉडी में सेफ फील नहीं कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूचर से बहुत डर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा, कोई लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, कहीं हमेशा के लिए तो ऐसे नहीं रह गए हैं, ऐसे ही अगर थॉट्स आ रहे हैं, तो दिस इज स्पेस जहां पर आई विल हेल्प यू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ इट. ठीक है, टू सो बिफोर वी बिगिन आई वॉन्ट कि हम सब लोग एक स्पेस में आए, एक काम प्लेस पे. ठीक है, तो उसके लिए व्हाट वील डू, वील कीप आवर hands on our heart and we'll take 3 deep breaths. Okay, with me, take a deep breath in, exhale. Take a deep breath in, exhale. Deep breath in, exhale. तो इससे क्या हुआ, हम सेंटर हो गए, राइट?
ना। अब आप इस वेबिनार, इस मास्टर क्लास के बाद क्या अचीव कर पाओगे इज आप अपने बॉडी में रिलीफ फील करोगे, यू विल फील इम्प्रूव्ड सेल्फ वर्थ एंड यू विल फील बेटर ट्रस्ट इन द डिवाइन। ऊपर वाले पे विश्वास अगर नहीं कर पा रहे हो आज तो आपको हो जाएगा, तो आप फील करना शुरू कर दोगे, ठीक है। एंड इफ यू स्टे टिल द एंड आई ऑल्सो हैव अ गिफ्ट फॉर यू, ओके। सो मेरी एक स्टूडेंट थी इरा। तो इसका क्या था कि शी वॉज गोइंग थ्रू सेम लूप्स इन अ रिलेशनशिप, 6 years हो गए थे। वही रिलेशनशिप टूटता था, वही रिलेशनशिप वापस बनता था, टूटता था, बनता था, एंड एवरी टाइम इट इट ब्रोक, इट वॉज लीविंग हर मोर एंड मोर डेवस्टेटेड। मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, she was crying all the time, she was not able to focus. Then when she worked on me, she was able to gain clarity and closure, ठीक है। And the biggest thing is she was able to stop repeating the patterns, ठीक है। When she was able to do that, she was able to feel lighter, she was able to feel free, and she was able to move ahead in life, ठीक है। अब हम ये काम कर क्यों रहे हैं? देखिए, हार्ट ब्रेक जब होता है ना, तो आई नो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे बिकॉज दिस इज हार्ट ब्रेक, मेरा दिल टूटा है, वाई एम आई फीलिंग फिजिकल पेन, मुझे बॉडी में क्यों दर्द हो रहा है? ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है बिकॉज आपकी बॉडी इसे एज पेन ही परसीव कर रही है, आपका ब्रेन का वही पार्ट इसे प्रोसेस कर रहा है जो फिजिकल पेन को करता है। तो दैट इज वाई इफ यू फील that this pain is too painful, I can feel it in my body, you are not imagining it. I want you to validate it for yourself that I'm not imagining it, it is, I am feeling that pain, ठीक है। नाउ क्या होता है आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर हार्ट ब्रेक, 70 to 75% लोग ये कहते हैं कि उनको एंजाइटी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। 80% लोग ये कहते हैं कि ऑब्सेसिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है पता है? क्या होता है? बिकॉज जस्ट आफ्टर हार्ट ब्रेक योर नर्वस सिस्टम, योर बॉडी हैज गॉन इन टू शॉक, रिलेशनशिप इज इट मेक्स अस फील सेफ। जब वो चला जाता है तो अचानक से दैट सेफ्टी हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम अस, एंड व्हेन दैट सेफ्टी इज टेकन अवे, तो हमारा नर्वस सिस्टम इज लुकिंग फॉर दैट सेफ्टी बिकॉज इट इज नॉट फीलिंग सेफ, इट इज इन दैट सर्वाइवल मोड। तो कोई भी आकर के कितनी भी एडवाइस देगा ना, एडवाइस नहीं समझ में आएगी। अगर हमें भी पता है भाई ये बंदा सही एडवाइस दे रहा है, नहीं कर सकते हम इम्प्लीमेंट बिकॉज वी फर्स्ट नीड टू कम टू अ सेफ प्लेस। आर नर्वस सिस्टम, आर बॉडी नीड्स टू फील सेफ बिफोर वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट एनी एडवाइस। तो इसीलिए इफ यू हैव ट्राइड रीडिंग एनी बुक, इफ यू हैव ट्राइड listening to your friends or anyone for advice here, तो advices will not work. What works is real healing work only at this place, ठीक है। और क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है, व्हेन हार्ट ब्रेक हैपेंस, व्हेन ब्रेकअप हैपेंस, हम अपने आप को बोलते हैं लाइक ओके 1 month लगेगा, 2 month लगेगा, और इससे ज्यादा कितना लगेगा? बट यू नो, जितना भी टाइम हम खुद को बताते हैं उससे ज्यादा ही लग जाता है बिकॉज इमोशंस की इंटेंसिटी इस टाइम इतनी ज्यादा होती है, द इमोशंस आर सो हाई दैट दिस माइंड सेज ओके आई कैन नॉट हैंडल दिस, आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस, एंड इट pushes it on the body. And by pushing it on the body is then tries to tell us, see, this is problematic, you need to work on it, this is problematic, you need to work on it. And what happens, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने उस पे तो काम कर लेते हैं, बॉडी सिम्टम्स पे जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा थॉट है, इमोशन है, जो नहीं हैंडल कर पाते उस पे काम नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो if you are with me here, if you understand this, then please type US in the chat box. Thank you. Thank you. So if you are with me, if you have this journey with me, then you will be able to process your शॉक, दो जो बॉडी शॉक में है वो आप 2 weeks में प्रोसेस कर पाओगे। जो सेल्फ वर्थ, आई नो जब हम हार्ट ब्रेक में, ब्रेकअप में आ जाते हैं, द ओनली थिंग वी वांट इज यार आई वांट टू कम बैक टू दैट प्लेस वेयर आई वाज ओके बीइंग माई सेल्फ, वेयर आई वाज एट पीस विद माई सेल्फ। नहीं होता ये, राइट? सो इफ यू हैव दिस जर्नी विद मी, विद इन 90 days you will be able to be there, and then वहां से we'll be able to build that place for you where you will be able to align with conscious love, right? Eventually we all want to be in relationships, like, right, we are meant to be in relationships, good ones. So healthy and conscious relationship ke liye it takes you 90 days to 3 years. Then I had a student called Ritika. Iska kya ho raha tha, like she was in a marriage but husband was betraying her again and again. तो क्या था, when she came to me, she was depressed, she was crying again and again, and like even taking her sessions was quite tough because her
her crying wouldn't stop. But when she worked with me, she came to a better place, inner clarity आया, self worth feel करना शुरू हुआ. She could align herself with conscious love, and by it was like magic. She told me that her husband came back and said that no, I'm not going to do this anymore, and now they are having this renewed connection. So sometimes what happens, जो existing connection, existing marriage है, अगर उसमें एक बंदा भी काम कर लेना, even one person is working, energy shifts, miracles happen. Okay, and then I had Garima. इसका क्या था? She was coming from a very tough childhood and had a very tough first relationship where she faced a lot of problems, and she had learned to put herself last. And because of that, she was not able to build healthy boundaries. Right? She was feeling guilty all the time. She wanted to be there for her partner. She would not know anything else. So when she was with me, we worked on her self worth, and then she started choosing herself, and her relationship also improved accordingly. Right. And then there was Savi. When she came to me, she was heartbroken, but her complete focus was on her career. Yes, I do. So she her complete focus was on her career. So इसने क्या करा था कि अपने हार्ट ब्रेक के बाद शी वाज नॉट एबल टू फोकस, मतलब शी वाज वरीड अबाउट दैट. सो व्हेन शी वर्कड ऑन हर सेल्फ वर्थ, दैट इज वेयर शी वाज एबल टू सी द मोस्ट बेनिफिट्स. So Rohan, I'm working on the pain of heartbreak. Okay, so heartbreak is not gender specific. I'm just telling you some examples that I've felt कि मुझे बताना चाहिए. सबसे ज्यादा impact यहाँ था. ठीक है. तो ऑब्स्टिकल्स, इस जर्नी में ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं? हम यहाँ क्यों नहीं आ पाते? वाई आर नॉट वी एबल टू कम टू द प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ? ठीक है, हम कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग करते रहते हैं. राइट, आई थिंक वी ऑल कैन रिलेट टू दिस. एज आई एक्सप्लेन, भाई जब नर्वस सिस्टम ही सेफ नहीं है, बॉडी ही सेफ नहीं है, तो वो सेफ्टी ढूंढेगी ना. तो सेफ्टी कहाँ ढूंढ रहे हैं? सेफ्टी कहाँ थी? रिलेशनशिप में लास्ट फील की थी सेफ्टी. तो माइंड इज गोइंग देयर अगेन एंड अगेन. इट इज लुकिंग फॉर सेफ्टी. इट इज स्कैनिंग एंड इट इज सीइंग ओके दैट वाज द प्लेस. सो क्या करते हैं? अगेन एंड अगेन यू आर गोइंग टू दैट रिलेशनशिप. थॉट्स वहीं चले जा रहे हैं टू योर एक्स पार्टनर. सो इसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू कम बैक टू अ प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ. क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं. इतना ज्यादा इमोशनल वो ओवरवेलम हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. ओके, सो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स आफ्टर देयर हार्ट ब्रेक? प्लीज type yes in the chat box or me in the chat box. Okay, because I know I was facing so much health problems. मेरा तो इतना, I'll tell you about my journey. For me health problems were a lot. तो ये आपको आने नहीं देते. आपको जरूरत है कि हेल्थ पे तो करो ही करो, फिजिकल सिम्टम्स पे, इमोशंस पे बहुत काम करना पड़ता है. ठीक है. और क्या हो जाता है यहाँ पे, जब एक हमारा रिलेशनशिप जाता है ना, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन और इट कुड बी बिकॉज ऑफ अस. सेल्फ वर्थ हिट होता ही होता है. कहीं ना कहीं वी स्टार्ट बिलीविंग दैट वी आर नॉट वर्दी ऑफ रिलेशनशिप. एंड इसकी वजह से क्या होता है? कहीं ना कहीं वी स्टार्ट सेटलिंग ईदर फॉर बैड रिलेशनशिप्स और लाइक नॉट दैट गुड रिलेशनशिप्स, और वी आर बिकम स्केयर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स. हमें क्या होता है? हम क्योंकि बार बार एक्स का ही सोच रहे हैं, हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. और क्या है, वर्क ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन दिस सर्वाइवल मोड, आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो काम, तो भी अंदर से यू डोंट फील गुड. तो वर्क पे, डेली लाइफ पे इम्पैक्ट्स आने ही लग जाते हैं. तो इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग. राइट. अब आई टेल यू अबाउट माई जर्नी, हाउ आई ओवरकेम दीज ऑब्स्टिकल्स माई सेल्फ. तो 2011, 15 years बैक, माई फर्स्ट रिलेशनशिप ब्रोक. जो मेरा बॉयफ्रेंड था, ही लेफ्ट मी. ओके, आई वॉज अबैंडन. एंड मेरे को बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लगा टू गेट ओवर इट. उस टाइम क्या था, सी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी अबाउट थेरेपी, एंड no one was talking about it. So I did not know that I need to talk about it, I need to share about it. And of course जब मैंने किसी से शेयर नहीं करा, किसी को बताया नहीं, खुद ही करती रही, तो बॉडी पे आ गया B12 डेफिशिएंसी, मेमोरी प्रॉब्लम्स. एंड जब मैंने, व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, आई टोल्ड देम कि ये सब हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन में दे रोट की डिप्रेशन है. ठीक है. समहाउ यहाँ से मेंटली तो आई वॉज आउट. एंड देन माई पेरेंट्स वर प्रेशरिंग मी फ्रॉम मैरिज, सो आई वेंट फॉर एन अरेंज्ड मैरिज. आई थॉट कि भाई पेरेंट्स कराएंगे, माइट बी थोड़ा अकाउंटेबिलिटी मेरी कम रहेगी, दे विल टेक दैट. बट इवन इन दैट रिलेशनशिप इनिशियली, तो जैसे हर रिलेशनशिप अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगा, बट
it came to that place where whatever I try it would not work. So I read a lot of books on relationships, jitna advices available tha, love languages, everything I read, but I was not able to implement into a good relationship. Relationship काम नहीं कर रहा था, and eventually I had to let it go. I was separated and eventually divorced by 2019. Then 2023 January was my rock bottom. जहाँ पे, क्योंकि it was the lowest point for me, I had no other option but to come. What happened? A new guy had come into my life, and it had been 2.5 years on and off हो रहा था. It was the worst relationship I ever had, and how much so ever I would try, that relationship was not improving. Like एक दिन का connect होता था, and that banda would again leave, and I was in such a bad place that I actually spent a lot of money on tarot. तो यहाँ पे कितने सारे लोग टैरो करा के आए हुए हैं? प्लीज टेल मी. टैरो, टाइप टैरो इन द चैट बॉक्स. आई थिंक 50% से ज्यादा टैरो इंडस्ट्री हमारे जैसे लोगों से चल रही है. एस्ट्रोलॉजी. I spent lakhs of money on tarot, and that tarot person would tell me बंदा वापस आएगा, बंदा वापस आएगा. And बंदा नहीं आया, I got to know कि he got married to someone else. And उसने मुझे बताया भी नहीं. Yeah, and like for so long, I was living in this fantasy in my head कि जब ये हुआ, I started questioning my sanity कि how was I living in that place? So what I understood was कि then जब मैंने अपना हीलिंग परस्यू किया, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये टैरो वैरो इज गुड इफ यू आर जस्ट डूइंग इट टू seek guidance, but you cannot keep hoping for your life to get better according to tarot. You have to work on yourself. जब हम खुद पे काम करते हैं ना, अपनी एनर्जीज पे काम करते हैं, तो चीजें इंप्रूव होती हैं. राइट. सो दैट इज वाई आई परस्यूड माई हीलिंग. ठीक है. और अनदर थिंग दैट आई गॉट टू नो वाज हैपनिंग वाज लाइक, मैं सब कुछ पढ़ के बैठी थी. आई वाज नॉट एबल टू मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप. मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी कोर्सेज करे हुए थी, रिलेशनशिप्स के बारे में सब पढ़ी हुई थी. एक्चुअली आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन. टॉपर रही थी शुरू से, तो पढ़ती बहुत थी. तो सब पता था मुझे. ठीक है. थियोरेटिकली पूरी नॉलेज थी, बट स्टिल आई डिड नॉट नो व्हाई आई डिड नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप. देन व्हेन आई वेंट फॉर हेल्प, आई वर्कड ऑन माई सबकॉन्शियस हीलिंग. मैंने ये समझने की कोशिश करी कि भाई रिलेशनशिप्स बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं. वाई आर दे जस्ट गेटिंग वर्स, वाई आर दे नॉट गेटिंग बेटर. तो जब मैंने ये हीलिंग करी, आई वॉज एबल टू अट्रैक्ट अ बेटर रिलेशनशिप, बट स्टिल आई वॉज एंशियस. मतलब माई बॉडी वॉज नॉट फीलिंग सेफ. And still, like, I know there is a lot of advice available online कि अपने आप को हक करो, ये सब करो. Was doing that, but it was not helping me that much. That is when I started learning EFT. Okay. And I found that when we are going through a breakup, जब हम heartbreak के टाइम में होते हैं ना, heartbreak is that time जब मोस्टली थेरेपीज काम नहीं करेंगी, बिकॉज एडवाइसेस काम नहीं करते. ठीक है. यहाँ पर आप ईएफटी टाइप का ही, क्या ईएफटी इज अ बॉडी बेस्ड टेक्निक, एंड इट डज नॉट लाइक रिक्वायर यू टू लिसन टू एनी एडवाइस, या फिर इट डज नॉट रिक्वायर यू टू गो डीप इन टू योर माइंड. तो क्या है ये, मतलब ये बहुत लाइटली काम करती है. एंड what I understood was that it was the thing that helped me, okay, at that juncture. तो एंड जब मैंने वो सीखा, अपने आप पे काम किया, आई फाइनली वॉज एबल टू कम टू दैट प्लेस. दैट इज वाई आई एम हियर टू हेल्प यू टू कम टू दैट प्लेस आफ्टर हार्ट ब्रेक ऑफ सेफ्टी. ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या करके आई हुई हूँ? मैं रिलेशनशिप्स पूरा पढ़े हुए हूँ, मैं सबकॉन्शियस हीलिंग सब पढ़ी हुई हूँ. आई हैव ऑल्सो लर्न सोमैटिक थेरेपी वाया EFT. ओके. तो बॉडी वर्क, सबकॉन्शियस वर्क एंड कॉन्शियस वर्क, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन है रिलेशनशिप्स. आई टेल यू. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे कैसे आई? 3 प्रिंसिपल्स दैट हेल्प मी आर, सबसे पहले तो मैंने अपनी हीलिंग पे काम करना नहीं छोड़ा. ठीक है. इवन दो आई वॉज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, आई न्यू इम्प्रूवमेंट हो रहा था. ठीक है. कभी कभी डाउट आएगा, बट इफ आई कंटिन्यू टू डू इट, आई न्यू एक टाइम आएगा, आई विल रीच दैट प्लेस. सो आई वॉज वेरी प्रोएक्टिव एंड आई केप्ट परस्यूइंग माई हीलिंग. मैंने इन्वेस्ट बहुत किया. यू सीन द सर्टिफिकेशन आई हैव. ठीक है. मैंने अपनी थेरेपी पे, अपनी लर्निंग पे बहुत इन्वेस्ट किया है. एंड आई हैव जस्ट नॉट वर्कड ऑन माई एनर्जी, आई हैव जस्ट नॉट वर्कड ऑन माई सबकॉन्शियस. मैंने अपने साइकोलॉजी पे भी, अपनी थिंकिंग पे भी, अपनी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब पे काम किया है.
ओके, सो अब क्या हुआ, व्हेन आई वाज एक्चुअली परस्यूइंग माय लर्निंग, आई माय मेंटर अदिति व्यास मैम, आई वाज लर्निंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी. उन्होंने एक बात मुझे बोली विच बिकेम द डिफाइनिंग मोमेंट इन माय लाइफ. शी सेड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में आज, देयर इज अ रीजन. इवन स्मॉल थिंग दैट इज हैपनिंग, यू आर इन दिस क्लास, यू डिसाइडेड, देयर वाज अ रीजन. ठीक है, आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस, ये सारा कुछ हुआ, देयर वाज अ रीजन. तो व्हेन शी टोल्ड मी दिस ना, तो फिर मैं पता लगाने लग गई कि भाई क्या रीजन था, क्यों हुआ था, क्या हुआ था. एंड यू नो, आपको चाहे तब समझ नहीं आए, आपको इवेंचुअली समझ में आने लग जाता है व्हाई आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग. सो इन सब से मुझे ये समझ में आया दैट what I need to work on is I need to create more awareness in society about breakups. You know, breakups are as painful as processing grief. कोई हमारी लाइफ से चला जाता है तो उसके लिए कितने रिचुअल्स होते हैं ना, सब रिलीजन्स में रिचुअल है, राइट? इफ यू अग्री प्लीज टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स. 40-40 डेज के लिए हम ग्रीव करते हैं, हमारी पूरी फैमिली हमारे पास आती है, राइट? हर हर रिलीजन में कुछ ना कुछ रिचुअल्स हैं दैट डू फॉलो दिस, फॉलो दिस, फॉलो दिस. एंड पता है, ऑल ऑफ द फंडा बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज कि द पर्सन नीड्स समवन एट दैट टाइम. द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दिस अकेले नहीं कर पाएगा, उसको चाहिए हेल्प. एंड सेम इज फॉर ब्रेकअप्स, बट पीपल डोंट नो दिस. जब इसलिए इसलिए हम इतना सफर करते हैं. And that is why it needs so much attention, and that is why I'm holding this place. Ki I'll tell you this, you will become aware, and आगे भी you will be able to help other people like this. You will be able to validate their suffering, validate their pain, right? So when someone is there to even validate हमारा pain, कि yes, what you are going through is actually supposed to be this painful and it makes sense, even we feel better that ways, right? So, my mission is that I want to coach 1 million people on how to work from a breakup to conscious love, to break through with love. Okay. सो अब हम यहाँ पर 3 चीजें कवर करेंगे: रिलीफ आफ्टर हार्ट ब्रेक, सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करेंगे, और डिवाइन में ट्रस्ट करेंगे. अब मैंने ईएफटी क्यों चूज करी? ठीक है, ईएफटी क्या करता है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, ये नर्वस सिस्टम को जेंटली काम करता है. ठीक है, ये फोर्स नहीं करता. आपको कहीं पे भी फोर्स फील नहीं होगा, आपको कहीं पे भी अननेचुरल फील नहीं होगा. आप नेचुरली अपने नर्वस सिस्टम को काम कर पाओगे. नर्वस सिस्टम ही अनसेफ फील कर रहा है, राइट? एंड ये आपकी बॉडी में जो रिलीज, जो इमोशंस आपने स्टोर कर रखे होते हैं ना, ये उन्हें धीरे धीरे रिलीज करने लगता है. तो जब आप इमोशंस जो रूट में है, बॉडी में है, उनको निकाल पाओगे ना, तो आपका एंजाइटी, पैनिक, इमोशनल ओवरवेलम ऑल रिड्यूस, सब कम होने लगता है. इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड जो चलता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है ना, वो भी स्लो डाउन होने लगता है. एंड देन नेचुरली हम अपने आप फील करने लगते हैं दैट वी आर सेफ विद हिम. ठीक है, सो ईएफटी, इसका फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इज अ जेंटल बॉडी बेस्ड हीलिंग मेथड एंड इट रिलीजेस इमोशंस स्टोर्ड इन द बॉडी. इसमें क्या होता है, वी लाइटली टैप ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द बॉडी. ठीक है, एंड इट वी टैप विद अ फोकस ऑन इमोशंस और स्ट्रेस. ठीक है, अब करते कैसे हैं, आई विल शो यू हाउ टू डू इट. what I want is कि you sit in one place and you have a straight back. Okay, आराम से बैठेंगे, straight back करके बैठेंगे, and I'll show you. You will do it with me. Should I show you? Please type yes in the chat box if you want to know. Okay, okay. So let's begin. आपको मुझे देखना है, ठीक है? And what we'll do is कि अपने face पर we'll start tapping with couple of 2 fingers. ठीक है? Light tapping करेंगे. We'll start with the eyebrow point. So this is the eyebrow point. This is side of the eye. This is below the eye. This is below the nose. Chin. फिर कॉलर बोन के 1-2 इंच नीचे, 1 or 2 inches below the collarbone, and then 1 or 2 inches below the underarm. ठीक है, एंड फाइनल पॉइंट इज दिस टॉप ऑफ द हेड. ठीक है, अब क्या है कि हमारे फेस पे उतनी ही स्पेस है कि हम 2 फिंगर्स रख पाए. सो दैट इज व्हाई इट मेक्स सेंस दैट वी पुट 2 फिंगर्स हियर. जो बॉडी, ये फेस के बाहर वाले पॉइंट्स है, वहां पे वी कैन पुट 4 फिंगर्स ऑल्सो. ठीक है, सो आई विल डू इट अगेन विद यू just to practice.
एंड हम क्या करेंगे, वील हैव दिस इंटेंशन कि इफ देयर इज एनी रेजिस्टेंस इन मी, इन माई बॉडी, टू नॉट वर्क ऑन द ब्रेकअप, तो वो रिलीज हो जाए, ताकि जब हम एक्चुअली रियल वर्क स्टार्ट करें तो हमारी बॉडी उसमें हमें सपोर्ट करे. तो वी विल हैव दैट इंटेंशन दैट वी आर वर्किंग on releasing any resistances that our body or mind might have to stop us from working on this. ठीक है? So you will look at me and you will tap with this intention. ठीक है? Eyebrow point, side of the eye, below the eye, below the nose, chin, below the collarbone, underarm, top of the head. एक और बार करेंगे. Eyebrow, side of the eye, below the eye, nose, below the nose, chin, collarbone, underarm, टॉप ऑफ द हेड. ठीक है, ये तो हमारे हो गए मेन पॉइंट्स. ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट है, देयर इज वन मोर पॉइंट, इट इज कॉल्ड द कराटे चॉप पॉइंट. ठीक है, सो ऑन दिस वी टैप, आई विल मेक यू टैप समटाइम्स. सो लाइक whenever we are beginning some round, तब हम करते हैं. ओके, सो whenever we have to tap on this, I'll ask you. Okay, if you are all with me and if you have got this, then please type yes in the chat box. Okay, okay, thank you. So before we begin, what I want is कि जो आपका ब्रेकअप इवेंट रहा होगा, जो हार्ट ब्रेक इवेंट रहा होगा ना, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पेन फॉर अस. आई वांट दैट यू सी इट इन फ्रंट ऑफ योर आइज लाइक एन इवेंट. ठीक है, देखो उसको अपने सामने, आंखों के सामने एक मूवी टाइप चलाओ, जैसे समझो अ मूवी इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज योर ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक इवेंट. एंड आई वांट to feel how emotionally intense it is making you feel. ठीक है, what intensity it is for you on the scale of 0 to 10. 10 is कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि भाई I cannot even go through it, that it is unbearable, and 0 is that it does not impact me at all. 0 to 10, you have to tell me what is the intensity for you for this event. ये heartbreak event जो breakup event था. 10. Okay. 10, 5, 9. हिमांशु, आपका 5 है, इसका मतलब है दैट यू आर एट अ बेटर प्लेस. लाइक 10 मीन्स कि बहुत गड़बड़ है, 5 मीन्स विच इज गुड. 9 सबने बता दिया. हैज एवरीवन टोल्ड मी? लाइक इफ यू विल टेल मी ना, देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर. सो आई वांट प्लीज एवरीवन बताओ, क्योंकि देन क्या होगा, इफ यू वोंट टेल मी देन आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू रीच दैट बेटर प्लेस. तो आई डोंट वांट यू टू गो फ्रॉम हियर फीलिंग कि और बेटर हो सकता था. Please tell me how much is the intensity, everyone? Okay. So that is why you were able to prepare for it. 7. Okay, अगर कोई रह रहा है तो प्लीज वो भी बता दो. We'll begin. ठीक है. So सबसे पहले तो हम कराटे चॉप करेंगे. ठीक है, तो even though I'm saying, आप you listen to me, you focus on what I'm saying and you tap with me. Okay, even though I'm going through this breakup, I choose to love and accept myself. ये क्या होता है, देखो, every healing begins when we accept ourselves. कोई भी healing शुरू ही नहीं होगी अगर आप अपने आप को ही जज करते रहोगे. तो here what we do is we are accepting ourselves. Any palm, left or right, कोई भी palm चलेगा. There is no foundation. ठीक है, even though this heartbreak event makes me suffer, I choose to love and accept myself. Even though this heartbreak still bothers me, I choose to love and accept myself. ठीक है, अब
what I'll do is I'll say this breakup event, and you have to think of your event. hmm? Whenever I'm tapping, I will say this event, and you have to think of your event. ठीक है? अब क्या है, जब मैं टैप करना स्टार्ट करूंगी, might be for some of you ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो, अगर जो 10 वाले लोग हैं, हो सकता है इनको रोना आएगा, ठीक है? तो आपको रोना आने देना है, यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ फ्रॉम क्राइंग। हो सकता है कुछ लोग स्लीपी फील करेंगे, बिकॉज क्योंकि वो सो नहीं पा रहे हैं बहुत दिनों से, तो दैट इज जस्ट योर बॉडी रिलीजिंग द स्ट्रेस। कुछ लोगों को यॉर्निंग आएगी, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है? सो दीज आर डिफरेंट वेज दैट आर बॉडी इज प्रोसेसिंग इट, रिलीजिंग द इमोशंस, एंड यू हैव टू लेट इट हैपन। आई जस्ट वॉन्ट दिस। ठीक है? डोंट गेट ओवरवेल्म कि रोना आ रहा है, नहीं कर पा रहे, नहीं। लेट जस्ट थिंक ऑफ क्राइंग ऑल्सो एज अ हीलिंग एक्सपीरियंस। बॉडी ये रिलीज करके अच्छा फील करती है, तो विदाउट एनी जजमेंट्स यू हैव टू लेट इट ऑल गो, तो आपकी हीलिंग भी अच्छे से होगी। ठीक है? दिस हार्ट ब्रेक इवेंट, दिस ब्रेकअप इवेंट, this heartbreak event, this breakup event, this heartbreak event, this breakup event, underarm, this heartbreak event, top of the head, this heartbreak event, eyebrow point, this heartbreak event, side of the eye, this heartbreak event, below the eye, this heartbreak event, below the nose, this heartbreak event, chin, this heartbreak event, collarbone, this heartbreak event, अंडरआर्म, दिस हार्ट ब्रेक इवेंट। अब मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी। टॉप ऑफ द हेड, दिस हार्ट ब्रेक इवेंट, दिस ब्रेकअप, दिस ब्रेकअप इवेंट, 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 this breakup event. Put your hands down, take a deep breath in, exhale, relax. ठीक है? एक और राउंड में कराऊंगी इसी के ऊपर, दिस हार्ट ब्रेक इवेंट। ओके? एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी, प्लीज टाइप FM in the chat box. Okay, okay, thank you. This heartbreak event, 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 this breakup 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 event, this heartbreak, this heartbreak event, 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 this heartbreak event. Put your hands down, relax, take a deep breath in, exhale. अब व्हाट आई वांट इज कि जैसे वी वर टैपिंग, एक इमोशन निकल करके आ रहा होगा प्रोमिनेंटली सबके लिए। ओके? आई वांट यू टू टेल मी व्हाट वाज द इमोशन दैट वाज कमिंग फॉर यू। इमोशन या फीलिंग, सैडनेस, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, हैवी हार्ट, क्राइंग एंड सैडनेस, रिलीफ। रोहन, आपका कितना था? आपका तो 10 था, राइट? आपका इंटेंसिटी 10 था ना? यस, तो रिलीफ आपको फील हो रहा है रोहन, लेकिन आप रिलीफ के नीचे देखो इमोशन क्या है। जैसे काजल, यस इट इज सैडनेस फॉर यू। हिमांशु, आई थिंक हैवी हार्ट है, तो आप चेक करो हैवी हार्ट के नीचे क्या है, सैडनेस है? आई वॉन्ट इमोशन, इमोशन पकड़ो, इमोशन आ रहा होगा। नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग, चेक करो, इज इट सैडनेस, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर आ रहा है। ओके, सो हिमांशु, फॉर यू इट्स फियर। रोहन, आप चेक करो व्हाट इज द फीलिंग फॉर यू। एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस पे टैप कर लेंगे नेक्स्ट होम कर। सब लोग बताओ व्हाट इज द फीलिंग फॉर एवरीवन।
नथिंग कैन नॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप ऐसा करो, नथिंगनेस पे करो। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज इफ समवन इज फीलिंग नथिंग और एम्प्टी, तो इसका मतलब है कि इमोशंस बहुत नीचे दब गए हैं, तो फेस नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, वी विल टैप ऑन इट सो दैट हमको फील होना शुरू, बिकॉज वी ऑल्सो डोंट वांट टू बी आउट ऑफ टच ऑफ आर इमोशंस, राइट? इट इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी, है ना? ठीक है, हैज एवरीवन टोल्ड मी? प्लीज, हु हैव नॉट टोल्ड मी, लेट मी नो व्हाट इज द इमोशन दैट इज कमिंग. Okay, so we'll begin the next round. ठीक है, I will say sadness. ठीक है, I will say this emotion, and whatever emotion that was coming for you, you will tap on that. जैसे nothingness, emptiness, आप इस पे भी कर सकते हो. ठीक है, और sadness. ठीक है, okay. I will say this emotion या this feeling, and this is what you will do. ठीक है, तो पहले तो हम कराटे चॉप कर लेते हैं. Even though I have this emotion, I choose to love and accept myself. Even though this emotion is there, I choose to love and accept myself. Even though there is this emotion, I choose to love and accept myself. अब यहां से करते हैं. This emotion, 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 this feeling, this feeling, this feeling, this feeling, this feeling, this emotion, 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 this feeling, 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 this emotion, 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 this emotion. Put your hands down, take a deep breath in, exhale, relax. ठीक है, अब जैसे हमने इस इमोशन पर टैप किया है, देन इट इज पॉसिबल कि आपके लिए कोई नया इमोशन आने लगा हो, और यू आर फीलिंग द सेम. तो यू हैव टू टेल मी, आर यू फीलिंग द सेम और सम अदर न्यू इमोशन इज कमिंग अप फॉर यू? सेम. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एक और राउंड करेंगे, उस पे हम सेम पे टैप करेंगे. ठीक है, आई विल से दिस इमोशन एंड यू विल बी टैपिंग ऑन द सेम. ठीक है, सबके लिए सेम है? ओके, सब बताओ. इमोशन जो अभी आ रहा है वो सेम आ रहा है? ओके, ठीक है, इंटेंसिटी लो है बट सेम, सेम पे कर सकते हैं. ठीक है, तो अगेन वील डू दिस कि आई विल से दिस इमोशन, दिस फीलिंग, एंड यू विल थिंक ऑफ दिस इमोशन और दिस फीलिंग. ठीक है, इवन दो दिस इमोशन is there, I choose to love and accept myself. Even though this emotion is still there, I still choose to love and accept myself. Even though I have this feeling, this emotion, I still completely love and accept myself. Hmm? This emotion, this feeling, 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 this emotion, this feeling.
Put your hands down. Take a deep breath in. Exhale. Relax. ठीक है. अब क्या करेंगे. यहाँ पर आई टोल्ड यू बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट. सो व्हाट आई वांट इज कि अब यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इमोशन आर यू फीलिंग इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी. लुक फॉर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड. व्हाट इमोशन यू आर फीलिंग इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी. कौन सा इमोशन कौन सी बॉडी पार्ट में फील हो रहा है. यू हैव टू टेल मी. हार्ट फील्स हैवी. ठीक है. सो हैवीनेस इन द हार्ट आपका इमोशन हो गया ओमकार. हैवीनेस इन द हार्ट. ठीक है. हार्ट इज फुल स्ट्रेन इन हेड. तो काजल आप ये चेक करो कि आपका इंपॉर्टेंट क्या है. मतलब हार्ट ज्यादा आ रहा है या हेड ज्यादा आ रहा है. वील स्टार्ट विद वन. हार्ट. तो वील स्टार्ट विद हार्ट हिमांशु के लिए. सेंसेशन इन हेड. तो फिर वही सेंसेशन. सेंसेशन के नीचे देखो अगर कोई फीलिंग है. नहीं तो सेंसेशन इन हेड कर लेंगे. हेड. ठीक है रोहन. व्हाट इज द फीलिंग इन द हेड. एंग्री. एंग्री इज अ वैलिड इमोशन. आप ये चेक करो कहाँ आ रहा है. कैंट रिकॉग्नाइज. थोड़ा सा देखो आंखें बंद करके व्हाट इज द इमोशन दैट इज कमिंग अप. नहीं आ रहा है तो अगर एम्प्टी है नथिंग है कुछ भी नाम इफ यू कैन गिव इट टू इट. हेड. ठीक है. तो आपके लिए एंगर इन हेड. सैडनेस इन हार्ट. तो चेक करो. मतलब वील स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड ना. तो आपके लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंगर इन हेड और सैडनेस इन हार्ट. सबसे ज्यादा कहाँ फील हो रहा है. क्योंकि एक बार में एक ही कर सकते हैं. ओके. एंगर. मंशु के लिए एंगर है. लिटिल बिट इज ऑल्सो ओके. ठीक है. वट एवर यूर फीलिंग इज वैलिड. ठीक है. ये कौन से बॉडी पार्ट में आ रहा है एंगर. चलो ओके विल बिगिन. ठीक है. तो आई विल से दिस इमोशन इन दिस बॉडी पार्ट एंड यू विल टैप ऑन जो आपका इमोशन आ रहा है इन वॉट बॉडी पार्ट. ठीक है. सबसे पहले वही कराटे चॉप. even though I have this emotion in this part of my body, I choose to love and accept myself. Even though this emotion is there in this part of my body, I still choose to love and accept myself. Even though I have this emotion in this body part, I still choose to love and accept myself. Okay. Now I'll say this emotion in this body part या this feeling in this body part और आप वही सोचोगे. This emotion in this body part, 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 this emotion in this body part. Focus वहीं पे. This emotion in this body part, 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 this feeling in this body part. Put your hands down. Take a deep breath in. Exhale. अब फिर से चेक करो कि अभी भी आर यू फीलिंग द सेम इमोशन इन द सेम बॉडी पार्ट या कुछ चेंज हुआ है. फिर से चेक करो. सबको बताना है. बिकम लेस बट है स्टिल देयर. इफ यू आर सेइंग बिकम लेस बिट बेटर इसका मतलब इट स्टिल इज देयर. अगर है तो फिर हम नेक्स्ट राउंड में उसी के ऊपर टैप करेंगे. व्हाट अबाउट अदर्स. जिन लोगों ने नहीं बताया सब लोग बताओ. इंटेंसिटी इज लो बट अभी भी है. हाँ इट्स ओके अभी करेंगे उसके ऊपर काम. सेम इंटेंसिटी कम हुई है रोहन.
नो, कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे. What I want is कि focus करो. Like when I'm saying this emotion in this body part, your complete focus should be on this emotion on this in this body part. ठीक है? बस. Now we'll begin. Even though this emotion is still there in this body part, I choose to love and accept myself. Even though I have this emotion in this body part of mine, I still choose to love and accept myself. Even though this emotion is still there in this part of my body, I still choose to love and accept myself. This emotion in this body part, 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 this emotion in this part of the body, 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 this emotion in this body part, this emotion in this body part, this emotion in this body part. अब मैं जल्दी जल्दी करूंगी, ठीक है? This emotion in this body part, 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 this emotion in this body part. Put your hands down, relax, take a deep breath in, exhale. ठीक है. अब क्या होता है कि काफी सारे लोगों के लिए व्हेन दे थिंक अबाउट दिस हार्ट ब्रेक, दिस ब्रेकअप, तो ब्रेथ भी इम्पैक्ट होती है, राइट? वी नो हमारी इमोशनल हेल्थ इज very much related to our breath. When we are breathing deep, when we are in a calm state, तो breath अपने आप अच्छी होती है. जब हम intense घबरा रहे होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो ब्रेथ भी गड़बड़ होती है, राइट? सो नाउ व्हाट आई वांट इज दैट वी विल टैप while focusing on our breath. ठीक है? Everyone is with me. Please type WU in the chat box. Okay, thank you. This breath, 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 this breath. थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी. This breath, this breath, this breath, this breath, this breath, this breath. Put your hands down, take a deep breath in, exhale and relax. अब what I want is कि ना you think of the breakup event again. ठीक है? We have worked a lot. हमने बहुत सारा रिलीज कर लिया. अब आप दोबारा सोचोगे ऑफ द ब्रेकअप इवेंट, और अगर इन दैट ब्रेकअप इवेंट देयर इज स्टिल सम सीन जहां पर आपकी इंटेंसिटी इमोशनल बढ़ रही है, जहां पर कि आपको इंटेंसिटी ज्यादा फील हो रही है, तो ईदर यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स. अगर किसी के लिए बढ़ रही है तो मैं ये राउंड कराऊंगी, अदरवाइज फिर ये वाला मैं स्किप करूंगी. दैट इज व्हाई आई वांट यू टू चेक.
किसी के लिए भी बढ़ रही है? या तो रेज हैंड कर सकते हो या फिर टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ब्रेकअप इवेंट को देखो, पूरा जो भी हुआ है देखो, और वहां पर अगर कहीं पर भी स्पेशली इंटेंसिटी बढ़ रही है। किसी के लिए नहीं बढ़ रही, लिटिल बिट डिक्रीज। नो हिमांशु, व्हाट आई वांट इज कि ना आप देखो कि क्या कोई स्पेसिफिक सीन है, जैसे एक तो मूवी हो गई, एक तो हमारा इवेंट मूवी जैसा है, बहुत सारे सीन थे इसमें। क्या कोई स्पेसिफिक ऐसा सीन है जिसमें ज्यादा बढ़ रही है? बाकी सब जैसे समझो, अगर बाकी सब 8 है तो क्या कहीं पे 10 हो रही है, या बाकी सब समझो 3 4 हो गया है, कहीं पे 8 हो रहा है इंटेंसिटी। इफ समवन सेज यस तो कराऊंगी, अदरवाइज ये वाला राउंड स्किप। चेक करो। तो किसी के लिए नहीं बढ़ रहा है? एवरीवन इज गुड। आई हैव गॉट अ गुड बैच टुडे। सब लोगों का काम हो गया। चलो गुड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे लास्ट में? सबका हार्ट ब्रेक इज एसोसिएटेड टू एन अ पर्सन, राइट? वी विल टैप ऑन दैट पर्सन। ठीक है, सबके जो भी एक्स पार्टनर, एक्स, वट एवर यू कॉल देम, आई विल से दिस पर्सन एंड यू विल थिंक ऑफ दैट पर्सन एंड वी विल टैप। ओके? Even though there are tough times associated with this person, I still choose to love and accept myself. Even though I still feel emotionally intense when I think of that person, I still choose to love and accept myself. Even though this emotional intensity is still there when I think of that person, I still love and accept myself. Hmm? This person, 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 this person. Put your hands down, take a deep breath in, रिलैक्स। ठीक है। अब क्या होता है जब हमारा हार्ट ब्रेक ब्रेकअप होता है, तो कुछ भी एक्सचेंज ऑल्सो, राइट, कुछ हर्टफुल वर्ड्स कह दिए जाते हैं जो हमारे साथ कैरी हो जाते हैं, और हम वही सोचते रहते हैं, यार उसने ये कह दिया था, उसने ये कह दिया था, इट वाज सो हर्टफुल। सो व्हाट आई वांट इज, प्लीज टेल मी, डू यू हैव सच वर्ड्स? किसी के पास ऐसे वर्ड्स हैं जो उन्हें ज्यादा हर्ट कर रहे हैं एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम? इफ यस देन प्लीज टाइप यस। ओके, यस। और किसी के लिए है? काजल के लिए है। अबैंडनमेंट। ये वर्ड्स हैं आशुतोष। कुछ बातें जो कह दी गई हो कि उन्होंने कहा यार तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या तुम हमेशा से ऐसे ही थे, क्या मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं करा, उस टाइप के वर्ड्स। नो वर्ड्स, दैट्स बैड। ओके, ठीक है हिमांशु, तो बाकी सबके लिए आई विल डू दिस वर्ड्स। हिमांशु आप क्या करोगे, आप दिस पर्सन पे ही करोगे, ठीक है? और आप दिस पर्सन पे ही करो, ठीक है? यू हैव टू लेट दैट पर्सन गो। ओके, आई विल से दीज वर्ड्स एंड बाकी सब लोग वर्ड सोचेंगे, एंड हिमांशु यू विल थिंक ऑफ द पर्सन। यस आई अंडरस्टैंड। ओके, even though these words still hurt me, I still choose to love and accept myself. Even though
These words are still there in my psyche. I still choose to love and accept myself. Even though these words are still there, I still love myself. I still accept myself. Hmm? These words, 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 these words. Put your hands down, take a deep breath in, exhale, and relax. अब नाउ आई वॉन्ट कि आप फिर से सोचो ब्रेकअप इवेंट का एंड नाउ अगेन टेल मी द इंटेंसिटी ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10. 10 मतलब अभी भी बहुत ज्यादा है और 0 मतलब अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है. 7, 5. वेरी गुड काजल. आप 10 पे थे. 10 से 5 पे आना इज अ गुड वन. बट स्टिल मतलब सबकी जर्नी अपनी ही है. बस 4 to 4.5 इज ऑल्सो गुड. और बाकी सबका कितना है सब बताओ तो फिर आई विल डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप्स अकॉर्डिंगली. लाइक आई टोल्ड यू कि अगर इफ यू वांट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लास ना तो आपको बताना पड़ेगा मुझे. ठीक है. तो ओमकार आपका भी 7 है तो व्हाट आई वांट इज कि लाइक विद ओमकार सब लोग एक बार और ब्रेकअप इवेंट पे करेंगे ताकि ओमकार के लिए भी थोड़ा लो हो जाए. तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है. तो दिस ब्रेकअप इवेंट, this breakup event, 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 this breakup event. Put your hands down, take a deep breath in. रिलैक्स. अच्छा अभी सब लोग बताओ सबके लिए बेटर है. लाइक फ्रॉम बिफोर इज एवरीवन फीलिंग बेटर. यस. यस. ओके गुड. सब लोग बताओ. चलो ओके. अब क्या करेंगे. अब हमने अपने इस पे तो काम कर लिया. नाउ हम अच्छे वाले प्लेस में आ गए हैं वेयर वी कैन नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्डिंग आवर सेल्फ वर्थ. ठीक है. तो मैं सेल्फ वर्थ और लेट गो दोनों अभी कराऊंगी साथ में. ठीक है. तो आपको क्या करना है. यू हैव टू लुक एट मी, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. अच्छे से सुनो, फोकस करके सुनो, एम्बॉडी करने की कोशिश करो एंड टैप विद मी. ठीक है. ऑल दो मेरी लाइफ में ब्रेकअप हो गया था, ऑल दो आई हैड ब्रोकन अप एंड आई वॉज इन अ बैड प्लेस, स्टिल आई हैड दिस करेज टू वर्क ऑन माई सेल्फ. Still, I had this courage to release my emotions. Still, I had the courage to come to this class because I value myself, because I love myself, and I wanted to work on myself. And that I have worked on myself, and that I have tapped on myself, and that I have had this journey. I have started to feel good. I have started to feel hope. I have started to feel that nothing is ever bad. There is hope. There is
still a white light. There is still possibility of things getting better. And as I've started on my healing journey, as I've started on working on myself, I can feel that this white light is spreading throughout my body and making me feel more hopeful, making me feel more light. And I can feel that I am becoming a magnet for good times ahead. I can feel that all my chakras are vibrating on a higher frequency and they are enabling me to achieve a greater frequency that will help me attract not only better health, not only better finances, but also better future in my love life. Because I am happy with who I am today, because I have taken the courage to work on myself, because I am now on this journey of improving myself day by day. And as I say this, I'm coming into the place of complete self worth where I can feel that the universe is loving me for who I am. That universe is enabling me to go ahead on my path, the path that is designed specifically for my success, the path that is designed by universe for me. Because I know universe always supports me. Universe always loves me. And I love myself. I accept myself. I approve of myself. I work on myself to come to that place of strength and courage and self love. And so it is. Put your hands down. Take a deep breath in. Exhale. अब क्या करेंगे, एक ना मैं विजुअलाइजेशन कराऊंगी. सो व्हाट आई वांट इज कि आप लोग आईज क्लोज कर लो. ठीक है. एंड टेक, वही थोड़ा सा ना मतलब इफ यू आर इन अ चेयर, माइट बी बैक, थोड़ा सा रेस्ट योर बैक ऑन द चेयर. और थोड़ा सा कंफर्टेबल में आना, बहुत कंफर्टेबल में नहीं आना. एंड आई वांट कि close your eyes and start taking deep breaths. Deep breath in, exhale. Deep breath in, exhale. And with this, you can also continue to tap on your chest. Okay? As you are taking your deep breath in, deep breath out, deep breath in, breath out, focus आपका breath पे ही है. You will see that in front of you, your ex-partner, your ex is standing. ठीक है? And here this person is so that you can let them go. ठीक है. I know some people might be in that place कि उनको पता नहीं है कि move on करना है कि नहीं. तो मैं let go ही करा रही हूँ. Let go वो space है जहां पर कि आप present में हो, future जो भी हो, ये बंदा अच्छी energy में वापस आना हो या कोई और आना हो, you become ready for it. You let go of your person with a grace. ठीक है. तो let go करने से किसी का, I am not saying move on. ठीक है. और अगर कुछ लोग मूव ऑन करने वाले हैं, देन आई विल गिव देम, कुछ मैं बताऊंगी आगे. ठीक है. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू इमेजिन दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू and continue to focus on your breath and keep taking deep breath in, breath out, deep breath in, breath out. And जैसे जैसे you are doing this, you're seeing that with your person, with your ex partner, some chords are appearing. ठीक है. These are energetic chords. कोई हमारा पार्टनर होता है, इमोशनली भी कनेक्टेड होता है, उससे हमारी ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स बन जाती हैं. अब आपको वो दिखने लग गई हैं. ठीक है. अब आप में से कुछ लोग मूव ऑन के प्लेस में होंगे, हु आर रेडी टू मूव ऑन टू अनदर पर्सन. ये लोग क्या करेंगे, ये सारी की सारी कॉर्ड्स जिस भी बॉडी पार्ट से दिख रही हैं वो अपने हैंड से कट कर देंगे. ठीक है. और जो लोग लेट गो की प्लेस में हैं, जो अभी मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं है, वो वाली कॉर्ड्स कट करेंगे जो पेन दे रही हैं, पेनफुल कॉर्ड्स कट करेंगे. और जो कॉर्ड्स आपको रहने देनी है वो आपको खुद दिख जाएंगी, वो आप रहने देंगे. यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन हियर. जो रहने देने वाली कॉर्ड्स हैं वो रहने दो, जो कट करने वाली हैं वो कट कर दो. ठीक है. विद हैंड्स.
कट कर दो. कंटिन्यू टू टेक डीप ब्रेथ्स. ठीक है. एंड एज यू आर डूइंग दिस, यू विल सी दैट whoever you believe in, आपके भगवान और बाबा जी और एनीवन एल्स जिनमें भी आपका बिलीव है, वो आपके ऊपर है. ठीक है. एंड ही इज सेंडिंग यू गोल्डन हीलिंग लाइट. ही इज सेंडिंग यू ग्रेस. And this golden light is falling on you, and this is enabling to say to your partner that I let you go with grace. I forgive you for whatever happened, and I let you go with grace. ठीक है. तो आपको लेट गो करना है. आपको जाते हुए देखना है. आगे जो भी होगा, आपने लेट गो कर दिया, वो ऊपर वाले के हाथ में है. ऊपर वाला इज गिविंग यू दैट गोल्डन लाइट. ठीक है. गोल्डन लाइट जो है, अब आपको पूरी अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करनी है. ठीक है. ये आपके जो जो भी हैं, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, उनसे ग्रीडी हो जाना है कि गिव मी ऑल द गोल्डन लाइट आई नीड फॉर माई हीलिंग, फॉर मी टू बी एट दिस प्लेस. ठीक है. और जैसे जैसे ये गोल्डन लाइट आपकी बॉडी में भर रही है ना, यू आर कमिंग टू दैट प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ वेयर यू आर ओके एज यू आर. यू नो यू आर ओके एज यू आर. यू नो आज आप जहाँ हो, ये अच्छी जगह है. ये इसी जगह आपको होना था. दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू. ये बनी थी फॉर योर ग्रोथ. दिस विल टेक यू टू वेयर यू आर मेंट टू बी. बट आपको नहीं पता कहाँ. वो ऊपर वाला जानता है, बट आप पहुंचोगे, क्योंकि ऊपर वाला आज आपको सेफ फील करा रहा है. ये जो गोल्डन लाइट है ना, इसको भर जाने दो, अपनी पूरी बॉडी में फैल जाने दो. लेट इट स्प्रेड. लेट इट स्प्रेड कंप्लीटली. And this is that place of self worth. As you feel this complete self worth, I want you to tap thrice on your heart. One, two, three. Remember this. ठीक है. आगे कभी भी लो फील करोगे, यू विल टैप थ्राइस ऑन योर हार्ट एंड यू विल कम बैक टू दिस सेल्फ वर्थ. याद रखना है, ये एंकर है. 1 2 3. हार्ट पे टैप करोगे, सेल्फ वर्थ में वापस आओगे. डिवाइन में ट्रस्ट. ऊपर वाला है, वो देख रहा है. यू कैन लेट गो. कुछ सिचुएशंस में हम लेट गो ही कर सकते हैं, तो हम लेट गो करेंगे. ठीक है. नाउ अभी इस प्लेस को, इस स्टेट को एंजॉय करो. टेक डीप ब्रेथ इन, एक्सेल. डीप ब्रेथ इन, एक्सेल. इस फीलिंग में अपने आप को थोड़ा सा देर रहने दो. एंड देन स्लोली यू हैव टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट. कैसे आओगे? पहले पैर हिलाओ हल्के से, देन हाथ हिलाओ हल्के से, देन अपना हेड हिलाओ हल्के से, एंड देन slowly and slowly open your eyes. Come back to the present moment. Is everyone back? If everyone is back, please type back in the chat box. Okay, thank you. This was intense. I hope it made you feel better. Yes, okay. That is what my work is, right? To help you feel better. ठीक है. So I'll just share my screen. Just a moment. अभी को. Okay. तो अभी हमने क्या करा? हमने अपने हार्ट ब्रेक पे काम करने के बाद अपने सेल्फ वर्थ पे और ट्रस्ट इन द डिवाइन पे काम किया. ट्रस्ट इन द डिवाइन आता है तो लेट गो अपने आप आता है, राइट? हमें ऊपर वाले पे विश्वास हो जाता है कि हम चाहे, हम सबसे अच्छी जगह हैं. फ्यूचर जो भी होगा ऊपर वाला देखेगा. तो व्हाट वी डू इज टू रीबिल्ड एम्बॉडीड सेल्फ वर्थ. वी बिल्ड ट्रस्ट इन डिवाइन. और हम क्या याद रखते हैं? बिफोर लविंग अदर्स, बिफोर गिविंग आवर लव टू अदर्स, हम पहले अपना कप भरते हैं, हम खुद को प्यार देते हैं. ठीक है. बाहर से कितने भी सिम्टम्स लग रहे हैं, वो अंदर से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना रिलेशनशिप में, हार्ट ब्रेक से ओवरकम करने में, वो इसीलिए आ रही है बिकॉज आवर कप इज नॉट फुल. हम दे ज्यादा रहे हैं, अपने आप को नहीं भर रहे. तो सबसे पहले हमें वो लव खुद को देना है, फिर जो लव का ओवरफ्लो होगा ना, वो हम दूसरों को देंगे. ठीक है.
एंड देन देयर मस्ट बी सम पीपल अमंगस्ट अस जो डेस्परेट होंगे टू बी इन अ रिलेशनशिप। इनके लिए लेसन क्या है कि भाई पहले अगर आप डेस्परेट हो, रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो पहले आप हैप्पी सिंगल रहना सीखो, ठीक है। और अगर आप ऐसे हो कि रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो रहे हैं बट रहना नहीं चाहते हैं, भगे जा रहे हैं उनसे, तो आप क्या सीखोगे? आप रिलेशनशिप्स में रहना सीखोगे। तो क्या करना है, दोनों ही जगह आने के लिए बहुत रेजिस्टेंसेस आएंगी। यू विल फील फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आपको उन रेजिस्टेंसेस के ऊपर काम करते रहना है। तो स्पेशली आफ्टर हार्ट ब्रेक, व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस दैट स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग टू दिस सेल्फ वर्थ? I'll just show you the list. Fear of abandonment, मेंटल कन्फ्लिक्ट, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, इमोशनल पैरालिसिस जहाँ पे कि फील ही होना बंद हो जाता है, इमोशन समझ में आने बंद हो जाते हैं, रीअश्योरेंस सीकिंग होने लगता है, सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं, एक्स आइडियल लगने लगता है, ये भूल जाते हैं गड़बड़ क्या थी, अच्छा अच्छा सब याद आने लगता है, कंपैरिजन एंजाइटी आने लगता है, अटैक, अगर नया बंदा भी आ गया तो वो बिल्कुल वैसा ही आ जाता है जैसा पुराना था, लोनलीनेस बहुत ज्यादा लगने लगती है। ये सारी ही चीजें फील होती हैं आफ्टर द हार्ट ब्रेक। तो दिस इज अ बिग लिस्ट, राइट? अब हम ब्रेक थ्रू कैसे करेंगे इन रेजिस्टेंसेस से, ठीक है? तो इसके लिए क्या लगता है, इन रेजिस्टेंसेस से ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि ये आ रहा है और हमें इसके ऊपर काम करना है। एंड सेकेंडली, लाइक आई टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट, हमें पता ही नहीं है कि ब्रेकअप्स आर सो इंटेंस, तो कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। सो वी नीड दैट एनवायरमेंट जहां पर कि ये सपोर्ट मिले सो दैट हम कर पाए। एंड दैट इज व्हाई आई हैव डिजाइन दिस ब्रेक थ्रू 1.0, ठीक है? तो ये ब्रेक थ्रू 1.0 में क्या होता है, अगर आप मेरे साथ 3 मंथ्स के लिए काम करते हो, देन आई गिव यू द साइकिल ब्रेकर अवार्ड। क्यों क्यों? क्योंकि क्या किया है आपने, आपके जो ब्रेकअप के रीजंस थे, जो भी वुंड्स थी, आपने उनके ऊपर काम किया है, तो यू हैव ब्रोकन अ साइकिल। बिकॉज आप नेक्स्ट अट्रैक्ट करोगे तो वो सेम वुंड्स पे अट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर आपका एक्स भी वापस आता है तो वो सेम रिपीट नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो यू विल नॉट बी द सेम, राइट? देन अगर आप 6 मंथ्स मेरे साथ रहते हो, देन यू बिकम द इनर पीस चैंपियन, एज इन आप एनर्जेटिकली तो सेल्फ वर्थ कर ही लेते हो। यू ऑल्सो रिकॉग्नाइज, क्या होता है बचपन से मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों को पता ही नहीं है व्हाट इज दैट प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ। हम सब काम कर रहे हैं फॉर अप्रूवल ऑफ अदर्स। तो सेल्फ वर्थ हमें उस प्लेस में लाती है जहां पर कि हम दूसरों के अप्रूवल से ज्यादा खुद का अप्रूवल देखें, राइट? तो इसके लिए क्या है, एनर्जी वर्क तो होता ही है, थोड़ा बहुत हमें लॉजिकली भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बट ये होता है उसके बाद जब हम ब्रेकअप पे काम कर लेते हैं। तो 6 मंथ्स के बाद आई गिव यू दैट इनर पीस चैंपियन अवार्ड। एंड देन इफ यू स्टे विद मी फॉर से 1 ईयर, तो आपको आई विल टेक यू टू दैट प्लेस ऑफ कॉन्शियस लव वेयर लॉजिकली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट अ रिलेशनशिप टेक्स अलोंग विद एनर्जी, ठीक है? क्योंकि रिलेशनशिप सस्टेन करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं होती, आपको जैसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और इमोशनल रेगुलेशन ये सब भी आना चाहिए, राइट? तो ये इसमें क्या करते हैं, जब व्हेन यू वर्क विद मी, आई हैव सेशंस विद यू, आई हैव क्लासेस विद यू, जिसमें विल वर्क ऑन एनर्जी हीलिंग, माइंडसेट शिफ्ट एंड सोल अलाइनमेंट गाइडेंस, ठीक है? जहाँ पे कि आपका सोल कहाँ जाना चाहता है, सोल के लिए क्या पर्पस है, वहां से अलाइनमेंट होगा। लाइक आई टोल्ड यू, आई एम ऑल्सो हिप्नोथेरेपिस्ट एंड लाइफ बिटवीन लाइफ थेरेपिस्ट, तो ये सब मैं उसमें इंक्लूड करती हूँ। तो हम जितने भी कॉल्स करते हैं वो हम लाइव करेंगे। एंड अगर आप ऐसे हो कि अपने एक्स के बारे में, एक्स का रिटर्न का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में स्टक फील करते हो और यू आर गोइंग थ्रू द सेम लूप्स इन योर रिलेशनशिप, बार 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 वही चीज हो रही है, आप भी सेम बिहेव कर देते हो, वो भी वैसे ही बिहेव कर देते हैं, और आप फिर भी पहले आप थेरेपिस्ट के पास जाकर के आए हुए हो, तो अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाकर के आए हुए हो, सो आई आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपके पास रियली टूल्स होते टू गेट ओवर इट, तो आप यहाँ आते ही नहीं। एक्चुअली you need tools, and that is why you're here. If you feel scared for relationships, या फिर आपको लगता है desperately I need a relationship, या आपको लगता है कि आप अकेले ये सब कर लोगे, तो क्या है, अकेले तो आप कर लोगे, बट क्या है कि आप आप क्या करोगे, आप ट्रायल एंड एरर करोगे कि शायद ये चलेगा, शायद ये चलेगा। व्हाई आई एम हियर इज कि मैंने ये सब प्रॉब्लम्स देखी हैं एंड आई नो व्हाट वर्क्स। तो एवरी स्टेज ऑफ योर रिकवरी requires a different methodology, a different modality, and I am here to help you heal through those modalities, learn through those modalities, ताकि आप अपने जर्नी के डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचो। पहुंच तो आप जाओगे, पाथ तो आपका वही है। आई एम जस्ट हियर टू मेक इट शॉर्टर फॉर यू, मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है?
तो आप इन सब, अगर आप इन सब से गुजर भी रहे हो तो भी आई दिस ब्रेक थ्रू 1.0 इज फॉर यू. दिस इज द अल्टीमेट ट्रेनिंग सिस्टम आई हैव डिजाइन टू हेल्प यू रीच द प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड कॉन्शियस लव अलाइनमेंट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले व्हेन यू बिगिन विद मी, एक 10 डे कोर्स है मेरे पास दैट विल हेल्प यू टू कम टू दैट सेफ प्लेस. अभी क्या होता है, जैसे जो भी लोग 10 कह रहे थे, इनके लिए ब्रेकअप बहुत रीसेंट है, दे डोंट फील सेफ. यहाँ पर आई कैन नॉट एडवाइस यू, आई कैन नॉट टेल यू कि ये जा करके करो. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ओनली हेल्प यू हील. तो ये वाला मेरा जो 10 डे कोर्स है, दिस इज स्पेसिफिकली हीलिंग. फिर 40 डे कोर्स हो, जब आप आ जाओगे ना नर्वस सिस्टम में, सेफ्टी में, तो क्या है, टू प्रिवेंट यू टू गोइंग बैक टू दैट स्टेट, टू प्रिवेंट यू फ्रॉम रिपीटिंग दो सेम मिस्टेक्स, आई हैव दिस 40 डे कोर्स जहां पर कि आप एक्सेप्टेंस पे आ जाओगे कि क्या हुआ है मेरी लाइफ में. ठीक है, और ये तो कोर्सेज हैं जो रिकॉर्डेड हैं. इसके साथ मैं करती हूँ 90 डे हीलिंग स्प्रिंट, जो कि लाइव कॉल्स होते हैं, एवरी वीक होता है. थर्सडेज को हम करते हैं 7:30 to 9 p.m. तो क्या होता है कि देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ सिमिलर पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स. तो एक तो एनर्जी सबकी कंबाइन होके जो हीलिंग होती है वो तो अच्छी होती है. लाइक आई थिंक यू मस्ट हैव फेल्ट इट हियर ऑल्सो. वी ऑल आर हियर इन दिस ग्रुप, और वी ऑल आर सपोर्टिंग ईच अदर इन दिस हीलिंग. तो डेफिनेटली इफ दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग प्लीज अटेंड दिस कॉल लाइव, क्योंकि जो कॉल अटेंड लाइव करता है ना, उसके लिए एक तो एनर्जीज रहती हैं, एंड देन आई एम वर्किंग विद यू एट योर पेस, राइट? तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द हीलिंग स्प्रिंट, दैट आई वर्क विद योर पेस एंड आई गिव यू स्पेशलाइज्ड सेशंस जो आपको आपकी जर्नी में आगे जाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये कॉल्स हम करते हैं 7:30 to 9. इनमें हम हीलिंग, कोचिंग, ग्रोथ, Q&A सब करते हैं. एंड इसमें आउटकम्स होता है इमोशन सेफ्टी, इनर सेफ्टी, रिन्यूड सेल्फ वर्थ एंड ट्रस्ट इन लाइफ डायरेक्शन. ये वैसे है 50,000 रुपीज का, बट बिकॉज टुडे वी आर इन दिस मास्टर क्लास, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, तो आई विल बी गिविंग यू एन अ स्पेशल ऑफर. ठीक है, तो मैं बताती हूँ, जब आप लेते हो मॉड्यूल 1 जो मैंने आपको बताया था 10 डे का कोर्स, उसमें आप किस पे काम करोगे, फियर ऑफ अबैंडनमेंट पे. दिस इज द थिंग दैट आई वांट यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फ्रॉम टुमारो. ठीक है, इमोशनल ओवरलोड, रिजेक्शन वूंड, आइडेंटिटी लॉस, डेस्परेट फिक्सिंग, मेंटल रिप्ले जो दिमाग में चलता रहता है ना, ये हुआ था वो हुआ था, डिनायल, डिनायल वाले लोग टैरो में जा रहे हैं क्योंकि अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं क्या हुआ है, तो टैरो से पूछ रहे हैं वापस चीजें होंगी कि नहीं, है ना. फैंटेसी बॉन्ड क्या होता है, अगर टैरो वाला बता दे कि चीजें ठीक हो जाएंगी, तो क्या होता है, दिमाग में एक फैंटेसी बन जाती है कि ओके दिस पॉइंट स्टिल रिमेन्स, जबकि रियलिटी नहीं होती. आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेज एंड आई रियली डोंट विश एनीवन टू बी इन दैट स्टेज. एनजाइटी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड इमोशंस फील होने बंद हो जाते हैं. दिस हैपेंड फॉर मी एंड रियली, मतलब इमोशंस हमारे साथ रहे, हमें फील होते रहे, वो बेटर होता है. यू डोंट वांट टू कम टू दैट प्लेस वेयर आप हंसना चाहो आप हंस नहीं पाओ, रोना चाहो आप रो नहीं पाओ. तो यहाँ पे आप इन सब पे काम करते हो. देन जब आप 10 डेज कर लेते हो, देन देर आर 4 more मॉड्यूल्स जहां आपको फिर भी हीलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वहां तो आप सिर्फ सेफ्टी पे आ गए, बट फिर भी क्या होता है, सेफ्टी के बाद आने के बाद भी बॉडी को आदत है, नर्वस सिस्टम को एक आदत है, तो वो ऑब्सेशन होने लगता है कि वापस चले जाएं. तो ऑब्सेसिव थिंकिंग, आइडियलाइज हो जाता है, अपने ऊपर ब्लेम हो जाता है, रीअश्योरेंस ढूंढने लगते हैं, कभी एक्स से कभी किसी और से, सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं, कांटेक्ट करने का बहुत मन करने लगता है, अगर एक्स मूव ऑन करने लगा है तो उसी की एंजाइटी अलग होने लगती है, फॉल्स होप, इमोशनल डिपेंडेंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, ऐसे करके आप डिजाइन दिस जर्नी दैट यू कैन टेक स्टेप बाय स्टेप. और आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको आज लगा कि भाई नहीं, मतलब मैंने ऑब्सेसिव थिंकिंग अभी मेरे को आज बहुत ज्यादा हो रही है, तो यू गो स्पेसिफिकली टू ऑब्सेसिव थिंकिंग एंड दोबारा से कर लो. तो क्या है, आप जैसे रेगुलरली काम करते चले जाओगे, देन यू विल कम फ्रॉम, अभी ये वाला क्या होता है, यहाँ पे विड्रॉल एंड एम्प्टीनेस हो जाता है मॉड्यूल 3 में. इसमें इमोशनल पैरालिसिस, इंटेंस लोनलीनेस, अकेला बहुत ज्यादा फील होने लगता है, हेल्प होपलेस फील होने लगता है, थकान, स्लीप प्रॉब्लम, बॉडी प्रॉब्लम्स इस स्टेज में आने लगती हैं, एपेटाइट चेंजेस, सोशल विड्रॉल, बाहर जाने का मन नहीं करता है, सोचते रहते हैं, थक गए हैं सोचते सोचते फिर भी सोचते रहते हैं, और नॉस्टैल्जिया, अच्छा टाइम सोच सोच के दर्द होता है कि अब वो टाइम नहीं है. और दूसरा, ऊपर वाले पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है इसमें. तो यहाँ पे हम इनके ऊपर काम करते हैं. देन मॉड्यूल 4 में क्या है, दिस इज द अल्टीमेट स्टेज. यहाँ पर लोग वापस जा सकते हैं, यहाँ पर लोग कैन रिपीट द सेम पैटर्न्स अगेन. सो आप इस स्टेज में करोगे, गिल्ट ओवर डिटैचमेंट पे काम करोगे, इमोशनल फ्लैशबैक्स पे काम करोगे, हीलिंग डाउट पर, बाउंड्री ब्रेक्स, कंफ्यूजिंग पेन विद लव, रिकंसिलिएशन फैंटेसीज, अपने आप को ही जज कर लेना कि एक बाउंड्री ब्रेक हो गई, फिर खुद को ही जज कर लिया. फिर क्या होता है भाई, रिबाउंड होने लगता है इस स्टेज में. अगर इस स्टेज में रिबाउंड में गए ना, तो रिपीट करोगे सेम पैटर्न्स.
तो इसके लिए, और क्या होता है प्रोजेक्शन, की अपनी गलती तो करी बट अपनी गलती नहीं करी, दूसरे की बता दी, क्योंकि हमें लग रहा है उसने गलती करी, क्योंकि हमें सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, बट ऑफ कोर्स पीपल हु आर हियर आर सेल्फ अवेयर पीपल, बिकॉज उन लोगों ने डिसाइड किया टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. सो आई डोंट वांट दैट यू रिपीट दोज अटैचमेंट्स, यू रिपीट दोज पैटर्न्स, दैट इज व्हाई दिस मॉड्यूल इज देयर. एंड देन आप ये 4 मॉड्यूल्स कर लेते हो तो आप अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस की जगह पे आ जाते हो. आई ऑल्सो गिव यू टूल्स फॉर इनर रीपेरेंटिंग, इनर चाइल्ड वाला आपने सुना होगा, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, बेसिकली कमिंग टू द, जहां पर कि आप ऊपर वाले पे भी ट्रस्ट रख रहे हो और आप रियलिटी में भी रह रहे हो. क्या है ना, देखो, हम वी आर ऑन दिस अर्थ वी आर सपोज टू लिव ऑन दिस अर्थ. वी आर नॉट सपोज टू लिव ऑन द स्पिरिट वर्ल्ड. अगर आप टैरो ही टैरो करा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिट वर्ल्ड में रह रहे हो. और अगर आप स्पिरिट, बिल्कुल ही भगवान में विश्वास छोड़ चुके हो, तो आप अर्थ पे ही ज्यादा आ गए हो. तो हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए. तो यहाँ पर आई हेल्प यू विद दैट. फिर मॉड्यूल 6 में कंप्लीट सेल्फ वर्थ अलाइनमेंट, जहाँ पे बाउंड्री मास्टरी, सेल्फ रिडिस्कवरी, कि भाई हमको जो अच्छा लगता है हम वो बने, हम करें. इमोशनल इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंसी अपनी कम करना, एंड पीसफुली रिलीज कर देना. ठीक है. एंड इफ यू नो, ये जो मैं हीलिंग स्प्रिंट करती हूँ, दैट इज 50K कोर्सेज, 50K कोचिंग के होते हैं 40,000 पर ईयर, कम्युनिटी के होते हैं 40,000 per year, and I also give you award on completion. But because I told you I'm going to give you this special offer today. But before that, I want to tell you why I am doing this. ठीक है. What happened was, before that 2.5 year relationship, ये टूटा उससे पहले I had gone to meet this person. I was supposed to stay in that person's place. But वही, he got triggered and everything, and he asked me to leave. And I had to stay in a hotel in a place I did not even know, alone. ठीक है. आई कुड नॉट इवन टेल माई फ्रेंड्स बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मैं उनको बोलती तो वो मुझे उल्टा सुनाते. एंड दैट वॉज द वर्स्ट प्लेस इन माई लाइफ. लाइक, आई वॉज अ वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड. मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती थी. तो लाइक इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर मी व्हेन आई एवर स्टेड अलोन इन अ प्लेस. एंड यू नो, आई डिड नॉट आस्क फॉर सपोर्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स. मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं पूछा. पता है मैंने किसको पूछा? आई केप्ट गोइंग बैक टू दैट पर्सन, आस्किंग कि वो बदल जाए, वो मुझे वापस बुला ले, या वो मिलने आ जाए. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस वर्क आई नाउ रियलाइज कि सच अ बैड स्टेट आई वॉज इन. आई वॉज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अ पर्सन हु वॉज हर्टिंग मी. सोचो कितनी बुरी स्टेट होगी वो. एंड आई डोंट वॉन्ट any of you to get into that place. I want कि आप लोग इस पे काम करो and you come to that place where you can take your decisions from a safe place. तो इसीलिए आज का स्पेशल ऑफर, टोटल वैल्यू 1,18,000 होता है. आई एम गिविंग दिस ऑन 18,000 ओनली बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस कि भाई ब्रेकअप्स आर टफ, एंड आई हैव रियली ट्राई टू मेक दिस प्रोसेस ईजी, ताकि हम हेल्दी एम्बॉडीमेंट में आ पाए. ठीक है. एंड इफ यू वांट मोर, प्लीज टाइप मोर इन द चैट बॉक्स. आर यू रेडी फॉर मोर? यस. ओके. तो आज जो लोग साइन अप करेंगे उनको मैं एडिशनल बोनस दूंगी, हीलिंग वीडियोस के, हीलिंग रिकॉर्डिंग के. आप अपने एंजाइटी पे भी काम कर सकते हो, और आप अपने बिट्रेयल, हु ऑल आर हियर फॉर बिट्रेयल वुंड. यहाँ पे बिट्रेयल से चोट खा के कौन कौन आया हुआ है, प्लीज टेल मी. You know, I will not take your name, but betrayal is the worst place to be. I have been there. And it takes a very long time to come out of it. And if this repeats in your life, I really don't want that. इसीलिए I have created this course separately. If you have gone through betrayal, आप आज जा करके betrayal wound पे काम करना, because हम wound पे काम नहीं करते ना तो वो repeat होती है. I really don't want this wound to repeat for anyone, because this is the worst wound anyone can face. So you get these two additional bonuses on anxiety and betrayal wound. ठीक है. And more, if it was betrayal, then you need to work on it, because I really don't want कि आगे करो. ठीक है. Okay. And then there is more. I'm also giving you one-on-one with me. एक one-on-one I'll give you for free with me.
एंड आज के लिए दिस डील इज फॉर 9999, but just for the next 15 minutes, because I am having this masterclass and you are here still with me. Just for the next 15 minutes, I'm making it for just 4999. I'll just share the link. So till 8:45 p.m. this okay. So I'll just tell you what all is included. For 8:45 p.m. तक ये ऑफर वैलिड है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर लाइफ टाइम एक्सेस. ठीक है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज टाइप LTA इन द चैट बॉक्स. ये जो मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सेस. यू गेट एक्सेस टू माई पोर्टल, जहां पर ये कोर्सेज हैं. ओके, थैंक यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट अ 10 डे कोर्स. ठीक है. 10 डे कोर्सेज, दिस मॉड्यूल 1. ठीक है. यहाँ पर यू वर्क ऑन गेटिंग योर नर्वस सिस्टम टू सेफ्टी. जो बार बार इमोशनल ओवरवेलम फील हो रहा है, you're feeling that this breakup is too much for even think about, this will help you get your nervous system completely to safety. ठीक है. आज हमने किया है, नो यू आर फीलिंग सेफ टुडे, बट दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. दिस रिक्वायर्स सम मोर वर्क. ओके. तो हम क्या चाहते हैं, हमने ऑब्वियसली ब्रेकअप इवेंट पे काम किया है, तो ये सब चीजें आपके लिए कम हुई होंगी. व्हाट आई वांट इज कि इसके सारे इम्पैक्ट्स आप हटा दो, ताकि आगे जो रिलेशनशिप आए वो इतना हर्टफुल नहीं हो. अगर हो कहीं गड़बड़ जाएगी, तो यू आर इन अ प्लेस कि आप समझ पाओ बहुत जल्दी कि ओके, नो, दिस इज नॉट फॉर मी, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट. ठीक है. तो दिस हीलिंग विल हेल्प यू. देन मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6. तो दीज आर द मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग टू ब्रेकअप स्टेजेस. आपका स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 हो गया, स्टेज 4 हो गया, एंड ये स्टेज 5 हो गया. इसके बाद आप सेल्फ वर्थ अलाइनमेंट में आ जाते हो. ये कोर्सेज आते हैं आपको. देन उसके बाद यू विल हैव अ 90 डे हीलिंग स्प्रिंट विद मी, जहां पर कि वी विल मीट एवरी वीक ऑन थर्सडे 7:30 to 9 p.m. उसमें क्या होगा कि आई विल वर्क ऑन, जैसे आज हमने ब्रेकअप इवेंट पे काम किया, हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ले लेके काम करेंगे, ताकि आपकी यू नेचुरली कम टू दैट प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ अलाइनमेंट. ठीक है. आप वो इनर पीस फील करना शुरू कर दोगे. ठीक है. एंड यू गेट एक्सेस टू अ कम्युनिटी, टू पीपल लाइक यू हु आर इन द सेम प्लेस, एंड यू गेट एक्सेस टू मी. हम लोग जब मिलेंगे, वी विल मीट ऑन प्रॉपर जूम मीटिंग कॉल्स, सब वीडियो ऑन करके आपस में बात करेंगे. तो दैट विल बी आर वीकली कॉल्स. तो जैसे आप वीकली करोगे ना, तो अगर आपकी सफरिंग बढ़ भी जाती है, समझो कोर्सेज नहीं भी कर पाते हो, तो भी मेरे साथ आप वो हीलिंग स्प्रिंट अटेंड भी करोगे ना, तो भी यू विल कम बैक टू दैट प्लेस. एंड दिस हीलिंग स्प्रिंट आई विल हैव एवरी 90 days. तो अगर आप एक बार नहीं कर पाए, तो यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम. यू आर गेटिंग लाइफ टाइम एक्सेस टू दिस कम्युनिटी. ओके. And I'll give you award on completion for this. These are the awards. साइकिल ब्रेकर अवार्ड फॉर 3 months, एंड देन अगर आप मेरे साथ सेल्फ वर्थ पे पूरा काम कर लेते हो, तो इनर पीस चैंपियन, एंड देन कॉन्शियस लव चैंपियन. ठीक है. एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग अ one-on-one विद मी, एंड एंजाइटी एंड ब्रेकअप के वीडियोज, बिट्रेयल के आपको वीडियोज मिल रहे हैं. Yes, all of this is in 4999. Once you are able to sign up, I'll also show you how you can access the portal or our courses. Yes, these modules are video recordings, और आप मेरे साथ लाइव मिलोगे एवरी थर्सडे 7:30 to 9 p.m. सो वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक. हमारा एक हीलिंग स्प्रिंट इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है. सो इफ यू ज्वाइन टुडे, यू विल बी बेनिफिटेड. आप कल से ही स्टार्ट कर सकते हो. येस, इट इज 4999.
And once you're able to sign up after 8:45 p.m., once you're able to do this successfully, then I'll also show you what this portal is about, how to access it. Timing will be every Thursday, 7:30 to 9 p.m. Sorry, this 7, every Thursday, 7:30 p.m. to 9 p.m. You will be getting access to a WhatsApp group as well, जहाँ पर that will be an open group, and I'll also send you links to join. Yes. If you have any other questions, you can let me know. I'll share the link again. This is the link. Any other question anyone has, they can ask me. यस दीज आर अभी क्या है काजल, ये ना मैंने सारे टैपिंग के ही वीडियोस बनाए हैं। शुरू वाले तो मॉड्यूल 1 में आपको टैपिंग ही मिलेगा, बिकॉज एट दिस टाइम आई कैन नॉट हेल्प यू विद अदर, मतलब मैं जैसे हिप्नोथेरेपी अभी अभी आपको ट्राई नहीं करा सकती, बिकॉज बिकॉज आप उस प्लेस में ही नहीं हो। बट जैसे आप मॉड्यूल 1 कर लोगे, तो आप इवेंचुअली जब मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 में आते हो, तो देर आर सम मॉड्यूल्स दैट आर ऑन अदर अदर थिंग्स ऑल्सो। तो शुरू में हम टैपिंग ही करेंगे, बिकॉज अभी आपका स्टेट ऐसा है कि अभी कोई और आप पे काम करेगा ही नहीं। अ, सुंदरम, रेकी क्या होता है ना, रेकी इज एनर्जी हीलिंग। ऑफ कोर्स देखो, हीलिंग सारा काम करता है, बट ब्रेकअप का क्या होता है, ब्रेकअप के टाइम पे ना ज्यादातर चीजें बॉडी पर आ जाती हैं। इसीलिए आई हैव डिजाइन द CFT थिंक। रेकी मुझे भी आती है, आई ऑल्सो डू रेकी, मैं सब कुछ करके ही आई थी EFT पर। तो और सब चीजें काम करती हैं, एंड आई वांट टू इंक्लूड ऑल ऑफ इट फॉर यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स। मतलब मैंने मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 5 में इंक्लूड किया हुआ है। बट क्या है कि शुरू में अभी आप रेकी कराओगे ना, तो आपकी हीलिंग डेफिनेटली होगी। बट फॉर यू टू एक्चुअली, जैसे इफ यू फेल्ट बेटर टुडे ना, देन दैट वाज अ प्रूफ दैट EFT वर्क्स। बट रेकी जो है ना, वो ब्रेकअप पे उस तरह से काम नहीं करेगी। मतलब यस, वेलकम। ओके हिमांशु, थैंक यू, वेलकम, you're वेलकम टू दिस कम्युनिटी। आप 8:45 PM तक वेट करोगे, देन आई ऑल्सो शो यू कि मॉड्यूल्स कैसे कैसे करने हैं। ओके काजल, एंड वील मीट फ्रॉम टुमारो, and I really look forward to seeing you heal, come to that place, because it has taken me so long, 15 long years it took me to understand what really works. If you have any questions, you can let me know. I'd love to help any way I can help, any way I can provide any guidance. And also, there is an additional gift for people staying till the end.
ओके सुंदरम, व्हाट इज योर मतलब आपका क्या स्टेज है, मुझे समझ नहीं आया। इफ यू आर ओके टू शेयर, आप शेयर कर सकते हो, आई विल नॉट रीड इट लाउड। ओके, यू कैन जॉइन सुंदरम, आई हैव गॉन थ्रू दैट प्लेस। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। I'll share the link once again. That is very hard. इतना लंबा. I can really understand. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट सुंदरम की ना अपने आप से फिगर आउट करने से बेटर है. क्या होता है ना कि यू विल ऑल्सो, हम जो वीकली मिलते हैं ना, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिटी. तो आपको और लोगों से एक्सपोजर भी मिलेगा हु आर इन द सेम प्लेस. सपोर्ट भी मिलता है, साथ में हीलिंग भी होती है. तो इट विल रियली हेल्प यू टू कम टू दैट प्लेस. लाइक अगर आप रिकॉर्डिंग भी, अगर आप मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देख पा रहे हो, आप जस्ट ये मेरे साथ हीलिंग स्प्रिंट कर लो लाइव. इवन दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. सी, मैं यहाँ पे ना कुछ थ्योरी किसी को नहीं बता रही. वट आई एम टेलिंग यू इज वट हैज वर्कड फॉर मी. आई हैव रियली कम फ्रॉम द प्लेस यू आर इन, सुंदरम. Okay, and I really like, I have created this space, and I'll hope that it helps you. Okay, Kajal, you're welcome, Kajal, and I'll send you the invites. आप लोगों को मैं कल भेज दूंगी, ठीक है? Links to the group and ये हाउ टू ज्वाइन फ्रॉम टुमारो. सो कल, कल से आप लोगों को थर्सडेज फ्री रखने हैं फॉर 7:30 to 9 p.m. Okay, and I look forward to having this journey with you. Thank you for trusting me with it. हाँ, I'll tell you at 8:45 p.m. ये ऑफर I'm having till 8:45. तो मैं आपको एक्सेस बताती हूँ. जैसे आपने साइन अप किया होगा ना, तो आपको एक तो ईमेल आया होगा टू हाउ टू एक्सेस. ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ. दिस इज माय पोर्टल का एक्सेस. जिन लोगों ने भी साइन अप किया होगा उनको ब्रेक थ्रू 1.0 सिल्वर मेंबरशिप का आया होगा. आप इसमें लॉग इन कर सकते हो थ्रू OTP. ओके, एंड आई विल शो यू हाउ टू डू नेक्स्ट. I'll just wait till one more minute if anyone has any other question. Um, ओके, लाइक 8:45 हो गया है, तो मैं आपको बस बता देती हूँ व्हाट, हाउ यू ऑल कैन एक्सेस द कोर्सेज. तो व्हेन यू विल गो टू, मैं आई सेंट यू द लिंक राइट, आप वहां पे जाओगे. तो इफ यू कैन सी द स्क्रीन, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. आपको दिख रहा है ना कोर्सेज का टैब? प्लीज टेल मी. यस, ओके. ठीक है, तो ना ऐसे है, देखो, यू स्टार्ट विद मॉड्यूल 1. आज तो यू मस्ट बी फीलिंग बेटर. Tomorrow also you would be feeling better, but what you can do is you go to this module 1 एंड यू स्टार्ट डूइंग. इंट्रोडक्शन पे जाओ एंड ये फियर ऑफ अबंडनमेंट पे टैप करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो होता क्या है, कीप टैपिंग टिल द टाइम यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. ठीक है, होता क्या है कि ना जब हम एक मॉड्यूल कर लेते हैं उसके बाद हमारा दूसरा मॉड्यूल करने का मन नहीं करता. मतलब एक वीडियो कर लेते हैं, एक रिकॉर्डिंग. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डू 1 per day. ठीक है, और साथ में मैंने इंस्ट्रक्शंस इसमें भी दिए हुए हैं. व्हेन यू आर डन विद दिस, दैट मीन्स आपका नर्वस सिस्टम इज नाउ प्रोसेस द स्टेज 1. तो अब स्टेज 2 पर आ जाओगे. ठीक है, तो आप ये वाला कर लो. और अदरवाइज जैसे आप ये भी देख सकते हो, जैसे इफ यू गो
सॉरी, इफ यू गो, तो आप ये भी चेक कर सकते हो व्हाट इज इट दैट इज क्रिएटिंग द मोस्ट प्रॉब्लम फॉर यू, लाइक इज डिनायल कॉजिंग। आपका आपका टैरो का बहुत मन कर रहा है, माइट भी कभी कभी टैरो करा सकते हो, बट अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो फैंटेसी बॉन्ड और डिनायल पे कर लो टैप। एनजाइटी आ रहा है तो एनजाइटी के लिए तो ये भी है, वैसे ये जनरल स्क्रिप्ट है जो मैंने ये थोड़ा इजियर वाला है, जो मैंने एक और एनजाइटी का मॉड्यूल शेयर किया है, आप वहां पे जाकर के एनजाइटी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एनजाइटी, हील योर एनजाइटी एंड द हील द वुंड ऑफ बिट्रेयल, ये स्पेशल बनाए हैं मैंने, मींस ये बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड है। तो आप ये भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर फीलिंग। एंड वंस यू डू द मॉड्यूल 2, देन आप मॉड्यूल 3 करो, देन आप मॉड्यूल 4 करो, देन मॉड्यूल 5 करो, मॉड्यूल 6 कर लोगे तो आई आई अश्योर यू, यू आर गोइंग टू कम टू दैट प्लेस कि भाई वाह, कहाँ आ गए। मीन्स आई, मैं बताऊं, 15 ईयर्स से आई वॉज लुकिंग फॉर दैट प्लेस, और मैं अब जा करके आई हूँ, एंड रियली आई वुड लव कि आप लोग भी आ जाओ। ठीक है, तो दिस इज इट। एनी वन हैज एनी अदर क्वेश्चंस आप मेरे को बता दो, और मैं गिफ्ट भी शेयर कर देती हूँ फॉर पीपल हु हैव स्टेड टिल द एंड विद मी। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द 5 EFT स्क्रिप्ट दैट विल हेल्प यू। ये रिटन में स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यू डाउनलोड दीज एंड इनको रीड करते करते अपने ऊपर यूं 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 टैप करते रहो। ठीक है, इसमें मैंने लिखे हुए हैं कौन से पॉइंट पर टैप करना है विद व्हाट, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प। तो दोज हु हैव नॉट बॉट दिस फ्रॉम मी, आई रियली वांट कि ना आप लोग ईएफटी को, टेक ईएफटी एज सिरप डेली। ठीक है, 5-10 मिनट्स करो। ठीक है, अगर स्पेसिफिक नहीं कर पा रहे हो तो जो भी, जस्ट ईएफटी टैपिंग दिमाग में कोई इंटेंशन लेकर के करो। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन, आई विल एंड दिस कॉल। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी, थैंक यू।